Hello and welcome to Bureaucrats. This is Lakshmikant here, and we have already gone through Buddhism. Let me adjust the camera here. Now fine. Okay, we have already gone through Buddhism, and we already know that it is somewhere in 6th century BC when, in protest against all those Brahmanic cultures, traditions, that is Vedic cultures and traditions and rituals, few sects, or you may call it few religions, or you may call it Hinduism only, it divided into many small sects, and it is this period only, 6th century BC, when two important religious sects evolved, and which are right now two major religions apart from Hindu, Muslim, Sikh, Isai, you know, Hindu, Muslim, Sikhism and Christianity. We have Jainism and Buddhism. Okay, so Buddhism तो हमने already discuss कर चुका है. We have already covered a brief introduction about Lord Buddha, and then about the philosophies, teachings. अच्छा हाँ, ऐप में जो भी हैं मैं आपको मौका दूंगा, तब आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं. आई विल एक्सेप्ट इट एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस वर्बली. ओके, तो चलिए, फॉर टुडेज टॉपिक वी हैव Jainism. So Jainism is amongst the most important religions which evolved during this period only, Mahajanpada period only, that is the period of second urbanization, apart from Buddhism. Okay. And as far as Jainism and Buddhism, two most important religions that evolved during that period, the fact you have to keep in mind is Jainism evolved before Buddhism. Jainism evolved before Buddhism. However, we are doing Jainism after Buddhism only, but Jainism evolved before Buddhism evolved. ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? So the word Jain is derived from a Sanskrit word called Jina. It is derived from a Sanskrit word called Jina, and which means conqueror. Which means conqueror. One who has conquered his passions and desires. Who is conqueror? Jainism, the word Jainism जानते हैं आप, theory उसके साथ जोड़ देते हैं तो एक long theory जुड़ जाती है उसके साथ. Jainism, the word Jain is derived from a Sanskrit word called Jina, and which means conqueror or Jitendri in Sanskrit. It's a Sanskrit word and it means conqueror or Jitendri, who has conquered over all his desires and passions. तो conqueror कौन है? One who has conquered over his desires and passions, or in other words you may call it miseries and happiness. तो वो जो one who has conquered over his desires and passion means he has lost his interest. He has lost his interest towards all the pleasures of this world, and he is in a state, he comes to a state where he is free of all miseries, sorrows, happiness and all. He becomes neutral. ठीक है, तो ये है conqueror. ठीक है, ये आपको पूछ सकता है, ऐसा नहीं है. And according to Jainism cultures and traditions, there are around 24 Tirthankaras. There are around, number, you have to remember this number, there are around 24 Tirthankaras. ठीक है, and
According to Jain literature and compliances, there have been around 24 Tirthankaras. The first Tirthankar is Rishabdev. Is Rishabdev or Adinath? Rishabdev or Adinath. And Rishabdev or Adinath is considered as the founder of Jainism in India. As the founder of this religion, Jainism. He is the founder of Jainism. ठीक है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है. एंड उसके बीच में इन बिटवीन देयर हैव बीन मेनी तीर्थंकरास, बट यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दोज. बट द 23rd तीर्थंकरा and the 24th one. 23rd is Parshvanath. 24th तीर्थंकरा, इन्हें तीर्थंकरा किन्हें कहते हैं? तो अगर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो हु आर तीर्थंकर्स? इट इज नथिंग बट दोज हु हैव लेड फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म. अधिष्ठाता जो है, दोज हु हैव प्रपोनेंटेड प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफीज फॉर जैनिज्म, दे आर कॉल्ड तीर्थंकरास. मेन इन्हीं को मेन कहा जाता है, इन्होंने ही इसको प्रोपोगेट किया है. दे हैव propagated Jainism and they have contributed with their own philosophies and code of conducts which Jainism, those follower of Jainism, they still follow. ठीक है. And 24th is Mahavira. यहाँ याद रखना है आपको. तो the word Jainism is derived from a Sanskrit word called Jina, which means conqueror, one who has conquered over his passions and desires, one who has gone beyond all miseries and happiness of this world. Then there have been around 24 Tirthankaras. 24 Tirthankar, the first Tirthankar is Rishabdev or Adinath, and he is considered as the founder of Jainism. And the 23rd Tirthankara is Parshvanath, and 24th is Mahavira, the last of the Tirthankara. The last. He is considered as the last Tirthankara of Jainism, Mahavira, and he is also the real founder of Jainism. He is also considered as the real founder of Jainism. याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है. And there is also one fact. There are two Tirthankaras, Rishabdev, or that is Adinath only, and Arishta Nemi. These are the names of two Tirthankaras which are mentioned in Vedic literature, and that is Rig Veda. Their names are mentioned in Rig Veda. ये आपको याद रखना, ऋषभदेव, अरिष्टा नेमी. Some sources they also include Ajitnath. लेकिन ये आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए. लेकिन बी फैक्ट अगर कभी फंसा दे, देन Ajitnath इज ऑल्सो देयर इन ऋग्वेदा. लेकिन अगर आपको टू ऑप्शन प्रायोरिटी सेट करनी है, देन यू मस्ट हैव ऋषभदेव एंड अरिष्टा नेमी इन योर प्रायोरिटी. अच्छा, लेट्स हैव अ क्विक overview of, देखो, I must tell you this. Although according to Jainism compliances and traditions and customs, there have been 24 Tirthankaras, but the historicity of the Tirthankaras before Parshvanath is doubtful. Most probably Jain literatures and granthas, they have mentioned these 22 Tirthankaras over Parshvanath just to attract the followers towards Jainism. है ना, ऐसा होता है ना, जैसे एक कहानी बनाई जाए जिससे लोग अट्रैक्ट हों जैनिज्म की ओर. तो इट इज मोस्ट कॉमन मीन्स we already know, we have all the facts and evidences of Buddhism about the life of Lord Buddha, and they are authentic. But what happens, it is not long back after Buddhism. ज़्यादा से ज़्यादा अंतर
ये नहीं होना चाहिए कि वी हैव ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट पार्श्वनाथ एंड देन महावीरा, बट वी डोंट हैव ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर 22 तीर्थंकरास बिफोर पार्श्वनाथ, ठीक है। लेकिन चूंकि जैन लिटरेचर्स और ग्रंथास दे मेंशन्ड इट, सो वी हैव टू कीप इन माइंड दिस. So the first Tirthankara according to Jain customs and traditions is Rishabhdeva Adinath, who is considered to be as the founder of Jainism. But the real founder of Jainism still remains Mahavira, the 24th Tirthankara, the last one. ठीक है, और ये याद रखना है आपको, क्यों? चूंकि as we have authentic informations about the 23rd and 24th Tirthankar Parshvanath and Mahavira, so we have to go a bit deeper for Parshvanath also. हम देखेंगे इसको. So setters nowadays they are asking going deep into this, so we have to cover this also. तो ये याद रहेगा आपको. क्या है अभी तक ये 4 फैक्ट. The word Jainism has been derived from the word Sanskrit word Jina, which means conqueror, who has won over passions and desires, miseries, happiness, sorrow, all are equal for him. उसके बाद according to Jainism there are 24 Tirthankaras. The first Tirthankara being Rishabhdev, and is also known as Adinath, and he is considered as the founder of Jainism. Then in between we have other 21 Tirthankaras. Then we straight come to 23rd Tirthankara, and that is Parshvanath, and the 24th Tirthankara and the last amongst the Tirthankaras is Mahavira, and he is considered as the real founder of Jainism. And one more fact, there are 2 Tirthankaras whose names are mentioned in the ancient Vedic text, that is Rig Veda. याद रखना. B fact, Ajitnath. अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो in few sources add Ajitnath also in that category. Okay. Now पार्श्वनाथ के बारे में देख लें थोड़ा. Parshvanath. So he was the son of Ashvasen. The ruler of Kashi. Parshvanath was the son of Ashvasen, and Ashvasen was the ruler of Kashi. And Ashvasen belonged to which dynasty? Ikshvaku dynasty. है ना. दे आर गोइंग वेरी फैक्चुअल. तो मैं ये सब कवर कर रहा हूँ कि हमें ये हम कर सकते हैं, और अगर ये आ जाए तो वी डोंट मिस दिस. पार्श्वनाथ वॉज द सन ऑफ अश्वसेन, एंड ही वॉज द रूलर ऑफ काशी, है ना. एंड ही बिलोंग टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी. एंड जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था, at the age of 29 Lord Buddha left his home. Parshvanath at the age of 30 left home for meditation and in search of reality. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Parshvanath at the age of 30 he left home, and after almost 80 or 83 days of severe meditation he attained knowledge, that is Kaivalya. अच्छा देखिए, वहाँ हमने क्या देखा था? बुद्धिज्म में अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन टू अटेनमेंट ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो कॉल्ड निर्वाणा और संबोधि. ठीक है. बट हियर इन दिस केस इन जैनिज्म अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एज तो कंफर्म नहीं है कि एट विच एज ही अटेन्ड नॉलेज, बट एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड ही अटेन्ड नॉलेज, दैट इज कैवल्या. हियर for this event, attainment of knowledge, we have a term called Kaivalya. आपको याद रखना है ये Kaivalya. He attained Kaivalya भी सीधे बोल सकता है. It means he attained knowledge, है ना, real knowledge. He attained knowledge on the on. अब कहाँ he attained knowledge? अब यहाँ स्पॉट भी पूछ सकता है आपसे, where he attained knowledge. So on समेत पर्वत, समेत peak, somewhere in Samet peak, Parshvanath mountain of Parshvanath mountain, and it is located in Jharkhand,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो पार्श्वनाथ, his father was Ashwashen, he belonged to Ikshvaku dynasty and he was the ruler of Kashi. Means Parshvanath also, the 23rd Tirthankara, belonged to a royal family. He was Kshatriya. And Buddha also belonged to a royal family. So what is the significance of both these personalities, Lord Mahavira, Parshvanath or Lord Buddha, being connected to a royal family? It is because of this only they were connected to a royal family. It was easier, it became easier for them to get patronization, to get their their religion patronized. No, as they already belonged to royal family, it was easier for them to have to go to other kingdoms. And considering this fact that Lord Buddha or Mahavira, they belong to a Kshatriya family, they were welcomed there, and so it became easier for them to get patronization for their propagation of their religion. एक फ़ायदा ये हुआ, अगर कोई नॉर्मल होता, a person belonging to Shudra or a smaller Varna, he would not got that opportunity or that exposure for propagating his religion. ठीक है. सो अगर कभी एक आए तो ये भी एक रीज़न है. इट विल हेल्प यू इन मेंस, प्रीलिम्स में तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन क्रिटिकली जब अगर मान लो कभी कभी ऐसा आ जाता है तो ये कि एक क्रिटिसिज्म हो गया, क्रिटिसिज्म नहीं बोल सकते आप, ये बोल सकते हो कि व्हाई इट वाज इजियर फॉर महावीरा एंड लॉर्ड बुद्धा, व्हाई मेनी सेक्ट्स एंड रिलीजन्स दे इवॉल्व ड्यूरिंग 6th century BC, but what it was not the same for other hundreds of sects which arose in that period only to propagate themselves. तो एक रीज़न ये है. So Jainism and Buddhism, they got favorable atmosphere for their propagation. It is because the founder of these both religions, they are from Kshatriya family, they are Kshatriya and they belong to royal family. ठीक है. इनके भी पिताजी है जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रूलर हैं, और लॉर्ड बुद्धा के पिताश्री भी जानते थे आप साक के रूलर थे, और अब आगे देखेंगे महावीर का भी वैसे ही देखेंगे. ठीक है. आइए अब देखिए, पार्श्वनाथ इज ऑल्सो कॉल्ड, एक और पार्श्वनाथ, the 23rd Tirthankar is also known as Purushadiniyam. ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं. द पार्श्वनाथ, हु इज, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज नोन एज पुरुषादिनियम इन amongst Jain Tirthankara. So Parshvanath is known as Purushadiniyam. Rishabdev is known as Adinath, the first. तो आदि बोलते हैं ना, द फर्स्ट, आदि पुरुष मतलब सबसे पहला. तो सिंस ही इज द फर्स्ट तीर्थंकरा, सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड आदिनाथ. ठीक है, आपको ये याद रखना है. इन जैन ग्रंथास, सो पार्श्वनाथ, द अदर नेम फॉर पार्श्वनाथ इज पुरुषादिनियम इन जैन ग्रंथास. अब आइए, सो पार्श्वनाथ, अब यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है. तो पार्श्वनाथ एक फैक्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्श्वनाथ टू हिज फॉलोअर्स, he told them few vows, or you may call it 4 conducts to follow. Parshvanath let his followers to follow few conducts or to take few vows. Means आपको ऐसे जीना है. Those who follow me, they have to live like this only, and they are supposed to follow these 4 Mahavrats. अब देखिए कि पार्श्वनाथ has propounded 4 vows बोल सकते हो आप, या फिर इसी को और क्या बोलेंगे, महाव्रत बोलेंगे, और यू मे कॉल इट अनुव्रत. ये सारे नाम देखिए, वो कंफ्यूज कर सकता है. ये आ रहा है कैमरे में, दोनों कैमरे में आ रहा है. हाँ, ये आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ हैज सेट 4 vows और महाव्रत और अनुव्रत
फॉर हिज फॉलोअर्स, दैट इज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म ओनली, ठीक है। और ये क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, द फर्स्ट वन, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अच्छा, व्हाई आई एम राइटिंग दीज हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश स्क्रिप्ट, द रीजन बीइंग समटाइम्स सेटर्स दे डोंट गिव इंग्लिश वर्ड्स, तो आपको दोनों याद रहा, अहिंसा हो तो पता लग जाएगा आपको, अहिंसा नॉन वायलेंस, ठीक है। द सेकंड इज सत्या, सत्य समझ जाएंगे आप, सत्य ट्रुथफुलनेस। अच्छा हाँ, मुझे एक बात बताओ, मैंने इस सिंस प्रीवियसली दिस ऐप वाज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ डाटा ड्यूरिंग लाइव सेशन, तो मैंने उन्हें 720 पिक्सल से नीचे करने को कहा है, अराउंड 240 पिक्सल। पिक्चर इज क्लियर, मुझे जवाब दो तो पिक्चर क्लियर दिख रहा है कि नहीं? पिक्चर एकदम क्लियर है ना, एकदम परफेक्ट। तो अब डेटा आपका कम लेगा, 1 घंटे में 400 MB से ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है, इफ दे हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, द फर्स्ट इज अहिंसा नॉन वायलेंस, सेकेंड इज सत्य, द थर्ड इज अस्तेय, द थर्ड इज अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय मीन्स नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना, नॉट टू स्टील। एंड द फोर्थ वन इज अपरिग्रह होना चाहिए, अपरिग्रह, अपरिग्रह, it is non acquisition, it is non, इस नीचे लिख देता हूं ना, it is non acquisition or non accumulation of anything, no accumulation of property, accumulation of money, ये सब आपको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पार्श्वनाथ has set 4 vows or mahavratas or anuvratas for his followers to follow. If they won't follow these 4 mahavratas, they won't be considered as pure Jainis, follower of Jainism. तो ये उनको फॉलो करना था, and these 4 together they are called Chaturthi. They are called Chaturthi. Since they are 4 in number, they are Chaturthi. So these 4 Chaturthi is propounded by Parshvanath. क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है later on Mahavira, after Parshvanath, Mahavira added a 5th Mahavrat into this, Brahmacharya. लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे जैनिस फिलॉसफीज और वो वहाँ टीचिंग्स एंड वो सब में पढ़ेंगे। मैं तो अभी पार्श्वनाथ आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम 5 महाव्रत देखेंगे। सो देर आर 5 महाव्रत एक्चुअली, बिकॉज लेटर महावीरा एडेड अ 5th महाव्रत और वाउज, दैट इज ब्रह्मचर्य, सो इट बिकेम पंच महाव्रत। तो आपसे पूछ सकता है कि हु हैज प्रोपाउंडेड पंच महाव्रत, या who has added the 5th Mahavrat Mahavira, and who has given the Chaturthi or the 4 Mahavrats or Anuvrats, that is Parshvanath. And those are, the first one Ahimsa, non-violence, Satya, truthfulness, the third one Asteya means not to steal। तो ये it is quite possible कि वो लोग इंग्लिश वर्ड दे ही ना, इंग्लिश में भी इसी को लिख दे, तो आपको याद रहना चाहिए। अहिंसा, ये तो इजी है, नॉन वायलेंस कोई प्रॉब्लम नहीं, अहिंसा नॉन वायलेंस। द सेकेंड वन सत्य, दैट इज ट्रुथफुलनेस। द थर्ड वन अस्तेय, याद रखना, नॉट टू स्टील, अस्तेय मीन्स नॉट टू स्टील, अस्तेय। एंड द फोर्थ वन इज अपरिग्रह। सो द 4 महाव्रत्स आर, द फर्स्ट वन अहिंसा नॉन वायलेंस, द सेकेंड वन सत्य ट्रुथफुलनेस, द थर्ड वन इज Asteya, that is not to steal. The fourth one, aparigraha, that is non-acquisition, accumulation, मतलब आपको प्रॉपर्टी, फूड, ये सब आपको इकट्ठा नहीं करना है ना, ये सब इकट्ठा करने में आपकी चाहत नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज, यहाँ तक आप एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। द वर्ड जैनिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड कॉल्ड जीना, विच मीन्स कंकरर,
one who has got victory over all his desires and passions, one who has achieved that status above misery, happiness and all those worldly feelings and all. After that, there, according to Jainism, there, how many Tirthankaras are there? There are 24 Tirthankaras. The first one being Rishabdev, and he is also called, as he is the first, he is also called Adinath. He is considered as the founder of Jainism in here all over. Jainism जहाँ भी है यही है founder है, वैसे है ना, ये हो गया. Then the 23rd Tirthankar is Parshvanath, and the last Tirthankara is Lord Mahavira. He is the last one, and Mahavira is called the real founder of Jainism. अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन आ जाए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दोनों आगे इनको कंसीडर करेंगे, ही इज मोर ऑथेंटिक. अब इस समय कॉल कौन कर रहा है यार? मुझे कर रहा है, मैं जबकि मैं तो इसको डू नॉट डिस्टर्ब में लगा के रखा हूं. आवाज आ रही, आवाज आ रही? माइक की आवाज. चलिए, सो महावीर इज ऑल्सो, आपको दोनों में चूज करना तो महावीर, क्योंकि ही इज द रियल फाउंडर. द ऑथेंसिटी ऑफ द तीर्थंकरास बिफोर पार्श्वनाथ इज इन डाउट. ठीक है, ओके. Now there are the names of two Tirthankaras mentioned in Rig Veda, that is Rishabdev, the first one, and Arishanemi. और अगर तीसरे वाले में कभी फंसा दे तो अजीतनाथ को जोड़ देना ऑप्शन को समझते हुए. ठीक है, उसके बाद कमिंग बैक टू पार्श्वनाथ. पार्श्वनाथ was his father was Ashwashen. He was the ruler of Kashi, belonged to Ikshvaku dynasty. At the age of 30, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे ये कभी लटके झटके बहुत अचानक में पूछे, इसीलिए मैंने बॉक्स में नहीं डाला, लेकिन अगर एक बार गुजर जाएंगे तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा. At the age of 30 he left home and he attained knowledge, that is according to Jainist tradition it is called Kaivalya. Kaivalya. So he attained Kaivalya where? कहाँ? सम्मेत पीक इन पार्श्वनाथ माउंटेन. तो आपसे ये लोकेशन भी पूछ सकता है, सम्मेत पीक या पार्श्वनाथ माउंटेन का लोकेशन कहाँ है? इट इज इन झारखंड. ना, हाई मिलता ही नहीं, उतना ऑथेंटिक नहीं है ना, तो नहीं मिलता वो. हमको ज़्यादा डीप जाना है महावीरा में, महावीरा पे रखना है ध्यान. ठीक है, चलिए महावीरा, लेट्स कम फोकस अपॉन महावीरा. महावीरा. ठीक है, आपको किताबों में अलग अलग डेट्स मिलेंगे. आई एम टेलिंग यू द डेट विच इज मेंशन्ड इन NCERT. ऑल्दो द बुक्स विद डिफरेंट डेट्स they are also authentic, but the problem is different literatures they tell different dates about Mahavira's birth. So the most accepted date of birth is 540 BC. It is 540 BC. किसी को ये सवाल पैदा हो रहा है कि लॉर्ड बुद्ध कब पैदा हुए थे? 5? वो तो गलत ऑप्शन में डाला था. 563 BC. ये देखो, बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC एंड महावीरा वॉज बॉर्न इन 550 BC. है ना? आपको ऐसे नंबर में क्या लग रहा होगा? रिवर्स होता है ये पहले हुआ है. 550 जो है 563 ऐसे रिवर्स ऑर्डर में चलता है. रिवर्स ऑर्डर में चलता है ऐसे, जैसे इधर 0 है. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जिन्हें कन्फ्यूजन होता है. मान लीजिए BC AD, वी हैव BC AD. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ.
बिफोर जीसस बर्थ, इसको एक जीरो मान लो आप, बिफोर जीसस बर्थ द पीरियड्स 1 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, सातवां, 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, 6 BC, 100 BC. We may call it first, removing these zero, first century BC. First century BC. Then after Jesus' birth, the period it is counted as this: first 1, 2, 3, 4, 5, and when 100 AD comes, you may call it 100th century AD. AD, BC before Christ, AD Anno Domini, Anno Domini. ठीक है, आफ्टर डेथ मत बोल देना, अगर कभी लटके झटके पूछ दिया तो फट से आफ्टर डेथ, ये बिफोर क्राइस्ट है तो ये आफ्टर डेथ होगा. दिट इज एनो, इनो से याद रखना, इनो, इनो डोमिनोज. जब भाई डोमिनोज का पिज्ज़ा खाओगे तुमको इनो की ज़रूरत पड़ेगी, जलन होगा. एनो डोमिनी ये है, ऐसे काउंट होता है. तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो इधर पहले क्या आएगा, पहले ये 563 आएगा, उसके बाद ऐसे ऑर्डर में जाते जाते 40 आएगा. तो इवेंट पहले कौन सा हुआ, ये हुआ कि ये हुआ, ये हुआ 550. इसीलिए मैंने कहा कि जैनिज्म और लॉन्ग बैक देखिए, महावीर इज द 24th तीर्थंकरा एंड ही वॉज बोर्न इन 540 BC. That is somewhere around 1st or 2nd century BC. This Rishabdev, according to Jain traditions and जन श्रुतियों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई जैनिज्म तो बहुत पहले इवॉल्व हो गया. ऑल्दो द ऑथेंटिसिटी इज डाउटफुल, लेकिन जैसा जैन ग्रंथ और टेक्स्ट बोलते हैं उसके हिसाब से तो भाई महावीर तो 24th थे ना, एंड ही इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. लेकिन ऋषभदेव कब पैदा हुए होंगे उनके हिसाब से तो और पहले जैनिज्म आ गया था. लेकिन उसको ऑथेंटिक इसीलिए, उसकी ऑथेंटिसिटी पर डाउट इसीलिए है कि उतना डिटेल हमें कहीं मिलता ही नहीं, कहीं मिलता नहीं. तो जैसा होता है ना कि लोग जैसे कोचिंग वाले अपनी कोचिंग को चलाने के लिए तरह तरह हथकंडे अपनाते हैं, स्टोरी बनवाते हैं, IAS में सेलेक्ट हुआ था नहीं गया, भले प्री ने निकला हो लेकिन आपको पूरे वहाँ फैला देंगे कि IAS का इंटरव्यू दिया हुआ है. ऐसा ये जनरल टेंडेंसी है कोचिंग वालों की, ये ऐसा करते हैं कि लोगों में मतलब. अच्छा मैं बताता हूँ आपको एक फैक्ट, दिल्ली में होता क्या है, आप जब जाएंगे ना, नया स्टूडेंट जब दिल्ली जाता है तो एकदम फ्रेशर पहुंचा है दिल्ली में, तो आपको बता दूं कोई अगर ऐसे ही बोल भी दिया, हवा उड़ा दिया, बहुत सारे स्टूडेंट हवा उड़ा देते हैं, इसने तो मेंस दिया है, वो सेलिब्रिटी बन जाता तुरंत. नए जो स्टूडेंट जाते हैं ना उनके लिए वो सेलिब्रिटी, अरे ही हैज़ क्लियर्ड प्रीलिम्स, ही हैज़ गिवन मेंस, सेलिब्रिटी बन जाता है. और अगर फिर किसी ने मेंस क्लियर कर लिया है तो वो सेलिब्रिटी का बाप बन जाता है. फॉर ऑल दोज 90 और 95% ऑफ क्राउड इन दिल्ली सेलिब्रिटी बन जाता है. तो यही कोशिश यहाँ के कोचिंग भी करते हैं, ये हवा उड़ा देते हैं, अपनी कहानी इस तरह से उड़ाएंगे, मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने वो एग्ज़ाम. अबे तू उतना एग्ज़ाम क्लियर किया तो भाटा क्यों भूज रहा है? कौन है जो नौकरी छोड़ के आता है भाटा भूजने के लिए? वो तरह तरह की कहानियाँ बनाकर नए स्टूडेंट जो कॉलेज से निकलते बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है वो. आइए, तो ये समझ गए आप. चलिए महावीर पे कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. महावीर, सो महावीर was born in 540 BC in Kundgram near वैशाली. एकदम इम्पॉर्टेंट है डेट, 540 BC in Kundgram, नियर वैशाली महाजनपद, नियर वैशाली. अच्छा, वैशाली एक महाजनपद था उस समय, वैशाली एक कैपिटल था, कैपिटल. तो वैशाली, और ये कहाँ है प्लेस, वैशाली कहाँ है, बिहार. आपको याद रखना है. व्हेन वाज महावीर बॉर्न, 540 BC, वेयर इन कुंडग्राम नियर वैशाली, नियर वैशाली. ठीक है, ये आपको याद रखना है. हिज फादर सिद्धार्थ. अच्छा एक और चीज याद रखना है, महावीर चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान. वर्धमान, ये चाइल्डहुड नेम है महावीर का, चाइल्डहुड वर्धमान ही था. आफ्टर अटेनिंग नॉलेज ओनली बिफोर द एज ऑफ 42, अभी देखेगा, बिफोर द एज ऑफ 42 ही वॉज नोन एज वर्धमान ओनली, ही वॉज वर्धमान ओनली. बट आफ्टर अटेनिंग नॉलेज
people began to call him Mahavira. Jain text and literature they describe this. ठीक है, so Mahavira's child name was Vardhamana and he was the son of Siddhartha. ठीक है, he was the son of Siddhartha, the head of Gyatak Kshatriya clan of Kundagram, and Siddhartha was the head of Gyatak Kshatriya. So Mahavira belonged to Gyatak Kshatriya clan. Gyatak Kshatriya clan of Kundagram. ये याद रखना है. अच्छा, कंफ्यूज क्यों हो सकते हो? लॉर्ड बुद्धा's चाइल्ड नेम वॉज सिद्धार्थ, तो वहाँ जो बुद्धा का चाइल्ड नेम था वो इनके पापा का नाम है सिद्धार्थ. द हेड ऑफ ज्ञातक क्षत्रिय क्लैन ऑफ कुंडग्राम. यहाँ तक ये एकदम ए पॉइंट है, ये बी फैक्ट, आप इसको बी फैक्ट में रख सकते हो. बाकी उस फादर नेम ऑफ सिद्धार्थ और ये यहाँ तक रख सकते हो आप. एंड त्रिशाला वॉज द सिस्टर ऑफ त्रिशाला. देखो, अब इनके पापा ये थे, फादर सिद्धार्थ वॉज हिज फादर, एंड मदर महावीरा's मदर वॉज त्रिशाला. ये याद रखना है आपको. त्रिशाला से आपको ये कनेक्शन याद, अपर पार्ट कट हो रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सत्येन? दिख रहा है उसमें फादर नेम दिख रहा है. अरे ऊपर में कुछ लिखा ही नहीं, ऊपर दिखा ही नहीं, नीचे आ गए. नीचे हिज मदर नेम इज त्रिशाला एंड त्रिशाला को, तो त्रिशाला का भी एक रिलेशन है. त्रिशाला वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक. बताता हूं, त्रिशाला जो इनकी माँ थी, ये किसकी सिस्टर थी? शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी. हमने देखा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था एक आपको, लिच्छवी. तो लिच्छवी पे किनका राज था? सॉरी, वैशाली पर किनका राज था? लिच्छवी डायनेस्टी है ना, एक वंश, उनका रूल था. ठीक है, तो यहां पर आप देखें, सिस्टर वॉज लिच्छवी रूलर चेटक. लिच्छवी रूलर चेटक. तो त्रिशाला कौन थी? त्रिशाला लिच्छवी रूलर चेटक की बहन थी. और देखो कनेक्शन, रॉयल कनेक्शन, क्योंकि यहीं से ये ग्राउंड बनेगा कि जैनिज्म प्रोपोगेटेड अलॉट एंड ही गॉट पैट्रोनाइज ऑफ बिग रूलर्स. यहां पे क्या हुआ? ही वॉज चीफ एंड हुज डॉटर, ये इसकी बहन थी. और चेतक की जो डॉटर थी, चेतक की डॉटर, शी वॉज मैरिड टू बिंबिसार, हर्यक रूलर, हर्यक द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, बिंबिसार. ये है कनेक्शन इनका. सो हु वॉज द फादर ऑफ महावीरा? सिद्धार्थ. ही बिलोंग टू ज्ञातक क्षत्रिय क्लैन एंड ही वॉज द रूलर ऑफ कुंडग्राम, हेड ऑफ कुंडग्राम. अब यहां से आते हैं, महावीरा's मदर त्रिशाला. त्रिशाला वॉज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बी फैक्ट में डाल सकते हो आप, यहां से यहां बी फैक्ट, लेकिन फिर भी ध्यान दोगे तो काम आएगा, कभी ना कभी लटके झटके पूछ देगा. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यहां से लेकर ये, यू कैन पुट दिस इन बी फैक्ट. लेकिन बी फैक्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसको छोड़ दो. जब भी गुजरो यहां से तो ध्यान से देखकर चले जाओ. अगर आ गया ना एग्जाम में तो आपसे क्लिक हो जाएगा. ठीक है, चलिए यहां तक हो गया. महावीरा's फैमिली वॉज कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली एंड of Magad, and those Bimbisar was the ruler of Magad. He was very powerful ruler of Magad, and so Mahavira's family was connected with the powerful rulers of Magad. It became easier for Mahavira to propagate his religion. ठीक है, बहुत आसान हो गया. Since he belonged to royal family himself and had connections with the most powerful ruler of those times, it became very easier for Mahavira to go in different Mahajanpadas and propagate Jainism. ठीक है, आगे चलते हैं.
He was married to, Mahavira was married to Yashoda. Mahavira was married to यशोदा. ये कौन है? वाइफ, महावीरा की वाइफ यशोदा. ठीक है. एंड दे हैड अ डॉटर. बुद्ध के बुद्ध और उनकी पत्नी के एक बेटा था राहुल ना, राहुल था ना. इनका महावीर और यशोदा की इन दोनों से एक बिटिया हुई जिसका नाम प्रियदर्शना. एंड द डॉटर द डॉटर ऑफ महावीरा वॉज डॉटर. ये तो दोनों की होगी ना, इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूं. डॉटर प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, एंड शी इज ऑल्सो नोन एज अनोज्या. अनोज्या हिंदी में अनोज्या बोलते हैं, अनोज्या, अनोज्या. ये भी आपको याद रखना. प्रियदर्शना बहुत लोगों को मालूम होता है लेकिन अनोज्या नहीं मालूम होता है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. सो द वाइफ ऑफ महावीरा यशोदा. कंफ्यूज मत होना, वहां यशोदा कौन थी? माँ थी. उधर यशोधरा उसकी माँ थी, है ना, बुद्ध की. और यशोदा यहाँ इसकी बीवी है. ठीक है, ऐसे ध्यान रखना. ठीक है. ही लेफ्ट होम. अब देखिए हर डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है. महावीरा, अब यहां से इवेंट शुरू करते हैं ना. महावीरा लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29. महावीरा लेफ्ट होम. ठीक है. और एट द एज ऑफ 42, यहां से अब देखेंगे 42. महावीरा लेफ्ट होम एट 30 है, 29 तो लॉर्ड बुद्धा का है. एट द एज ऑफ 30 he left home, and after 12 years of rigorous meditation and exile, Mahavira never used to stay at one place for more than 5 days. So he kept wandering over places and places in search of knowledge and in meditation. So after 12 years of rigorous meditation, at the age of 42, Mahavira attained knowledge. And that event in Jain, according to Jain culture and tradition, is known as Kaivalya. So they may also ask you indirectly, when did Mahavira attain Kaivalya? So that is at the age of 42. और अगर मान लो आपसे ईयर पूछ दे लटके से, झटके से, तो निकाल लोगे? ईयर पूछ दे तो एट व्हाट एज ही अटेन नॉलेज बोल दिया तो भाई 540 BC है. रिवर्स ऑर्डर में आगे बढ़ेगा. रिवर्स ऑर्डर में आगे बढ़ेगा मतलब बुद्ध पैदा हुआ 540 को, तो 539 दूसरा साल होगा, 538 तीसरा साल होगा. आप यहाँ से 42 माइनस कर दो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में जाओ तो क्या आएगा? 498 आएगा. 498 BC. भाई आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे एज पूछ दे तो भाई आपको तो ये याद ही रखना है 540 BC. और आपको ये भी पता है कि एट द एज ऑफ 42 है ही अटेन नॉलेज. लेकिन आपको ये भी पता है कि BC में पैदा हुआ है, बिफोर क्राइस्ट. इसका मतलब वहाँ उल्टा चलेगा. अक्सर हम क्या करते थे, 540 में कोई पैदा हुआ है तो 42 साल बाद बोलेंगे तो 582 बोलोगे आप. लेकिन BC में उल्टा चलता है, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा. 42 माइनस कर दो वहाँ से, आप पहुँच जाओगे 498 BC. निकल आया. इन 498 BC, in 498 BC, Mahavira attained knowledge, and where he attained knowledge, तो देखो अब इंपॉर्टेंट है ना, ये नॉलेज भी बोल सकते हैं, ओमनिसियंस ये भी पूछ सकते हैं ना, कैवल्या. ही अटेन नॉलेज दैट इज कंप्लीट, फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज बियॉन्ड दिस वर्ल्डली नॉलेज. उस नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि सारी किताबें उसको याद हो गई ऐसा वैसा, इसका मतलब ये नहीं होता. स्पिरिचुअल नॉलेज, इस कैवल्य प्राप्त हो गया, इसका मतलब ही हैज reached to that spot where he is beyond any knowledge. He has complete knowledge, that he has attained that stage where he is above from all miseries, happiness, pain, sorrows, सबसे. ठीक है, इसका मतलब ये omniscience बोल सकते हैं हम इसको. omniscience, when he attained omniscience, ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना. omniscience, one who is all, one who has
नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनिशियंस, है ना, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ऐसे याद रखना है आपको। अब कहाँ, तो अंडर द साल ट्री। अब देखो कंपैरिजन, लॉर्ड बुद्धा ही गेन्ड निर्वाणा, दैट इज संबोधि और नॉलेज अंडर पीपल ट्री नोन एज बोधि, पीपल ट्री, और महावीरा गॉट नॉलेज अंडर साल ट्री, अंडर साल ट्री। अब ये साल ट्री कहाँ था? साल ट्री वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर, रिजुपालिका रिवर, रिजुपालिका रिवर, ये रिवर भी आपको याद रखना है ना। और विलेज, वो विलेज कौन सा था? तो इट वॉज जिरिम्भिका ग्राम, रिजुपालिका रिवर इन जिरिम्भिका ग्राम, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सो एट व्हाट एज महावीरा, महावीरा लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30, लॉर्ड बुद्धा एट द एज ऑफ 29, at the age of 29, and when what was the age when he attained knowledge? 35, है ना, 35 ही था ना, और यहाँ 42, ये याद रखना है आपको, ठीक है। वहां पर रिवर कौन सा था? नदी कौन सा था? पुनपुन, और क्या कहते थे पुनपुन को? निरंजना, याद है? हाँ, निरंजन, ठीक है, ठीक है, सॉरी, अच्छा वो मदर वाइफ में गड़बड़ कर गया होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक, निरंजना, ओके। तो ये आपको याद रखना है, एट द एज ऑफ 42 ही अटेन्ड नॉलेज दैट इज ओमनिशियंस, दैट इज कैवलिया अंडर साल ट्री near the river on the banks of Rijupalika river in Jirimbica ग्राम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थ्रू कैवलिया, अब देखो, अब यहां से अब तक ये वर्धमान ही कहलाते थे, ठीक है। अब यहां से आफ्टर हैविंग कैवलिया और ओमनिशियंस ही कंकर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कंक्वेस्ट ही इज नोन एज कैवलिन। सो आफ्टर अटेनिंग नॉलेज महावीरा, after attaining knowledge Mahavira came to be known as Kavaleen, Kavaleen, ये याद रखना। कैवलिन किन्हें कहा जाता है? महावीरा, जैसे तथागत और बुद्धा, प्रिंस सिद्धार्थ जो है नॉलेज गेन करने के बाद तथागत और बुद्धा कहलाए, उसी तरह प्रिंस वर्धमाना ही केम टू बी नोन एज कैवलिन आफ्टर अटेनिंग नॉलेज, अरहत, जिना और निर्ग्रंथा। देखिए क्या क्या कैवलिन, कैवलिन क्या क्या नाम उनसे पुकारा जाता है ना, केवल कैवलिन नहीं, लेकिन कैवलिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैवलिन, अरहत, जीना, जो है, एंड निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा, एंड finally because during this 12 year of severe pain, severe sorrow during meditation, in spite of having all the difficulties and hardships, Vardhamana, he never changed his path and he continued his meditation. And so because of his great courage for these severe meditation of about 12 years, he came to be called as Mahavira, है ना, महावीरा। तो यहीं से अब इनको आफ्टर अटेनिंग नॉलेज he came to be known as महावीरा। तो कैवलिन, देखो क्या क्या कहा जाता है इनको, कैवलिन, अरहत, जीना, जीना, अब यहीं से कहा गया इन्हें जीना, अब यहीं से जैन बनेगा। इससे पहले लोग नहीं जानते हम इस रिलीजन को क्या बोलेंगे, इससे पहले नहीं, अब यहीं से इन्हें ही जीना कहा गया है। वन हु हैज
one who has got victory over all his desires, have any kind of worldly pleasure and feelings, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीना, है ना। और इसी जीना से क्या बना है, जैन बना है। द वर्ड जैनिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कॉल्ड जीना, तो जीना कहते थे इन्हें। तो महावीरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैवलिन आफ्टर अटेनिंग नॉलेज, कैवलिन, जीना, अरहत, निर्ग्रंथा एंड फाइनली महावीरा, ठीक है। अब देखिए, सो हिज कैवलिन एंड सो because he is called a Jina, and Jina in Sanskrit means conqueror, so his followers of Mahavira, सेंट तो बन ही चुके थे, ठीक है, एस्केटिक हो चुके थे। अब वहाँ से क्या हुआ, उनके फॉलोअर बने, उन्होंने he began to deliver his teachings, preachings and sermons, and people, they began to connect themselves with Mahavira, and the follower of Mahavira, अरे यार सुबह भी यही हुआ था, दस तारीख, देख तो बोर्ड दिखता है क्या हम लोगों को, इसको पॉज कर दे, पॉज कर दे, पॉज करना बंद मत करना, वाईफाई को चालू होने में टाइम लगता है। ओके, वी आर बैक। सो इलेक्ट्रिसिटी was cut down। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंडर एट द एज ऑफ 42, दैट इज इन 498 BC, Mahavira attained knowledge that is omniscience, and that even in according to Buddhist tradition, that means he achieved Kaivalya, he obtained Kaivalya, and after attaining Kaivalya, Prince Vardhaman came to be known as Kaivalin, Arhat, Nirgrantha, Jina and Mahavira, ठीक है। It is from this word only which Sanskrit was this Jainism, it evolved from this word only, and सीढ़ी चढ़ के आया तो रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ। So Mahavira attained knowledge under sal tree on the banks of Rijupalika river in Jrimbika Gram, ठीक है, ये याद रखना है। And the follower of, he was called Jina, so the follower of Mahavira, they came to be known as Jainas, ठीक है। तो जैन शब्द यहीं से निकला है। ओके, नाउ his first disciple महावीरास, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि कचरा हो जाएगा। His first disciple or pupil, अरे स्पेलिंग ही भूल गया, बताओ हो। His first disciple or pupil, शिष्य को pupil कहते हैं ना, was जमाली, याद रहना चाहिए। And this person जमाली, and in spite of other facts, you must remember this fact, he was the first disciple or pupil of Lord Mahavira, and this person was his son-in-law also, दामाद, प्रियदर्शना का पति, ठीक है। तो जमाली वॉज मैरिड विद महावीराज डॉटर प्रियदर्शना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द किंग ऑफ चंपा दधिवाहन ऑल्सो बिकेम हिज डिसाइपल, अब ये पहला था। नाउ अदर डिसाइपल अमंग्स अदर डिसाइपल ऑफ महावीरा, दधिवाहन द किंग ऑफ चंपा, दधिवाहन वॉज ऑल्सो हिज डिसाइपल एंड ही वॉज द किंग ऑफ चंपा। आपने महाजनपद में देखा था, एक चंपा, बिहार में ही चंपा महाजनपद था ना, चंपा, ये वहाँ का किंग। और
चंदाना द डॉटर ऑफ दधिवाहन। अब दधिवाहन की एक बेटी थी, डॉटर चंदाना, इसका नाम था चंदाना। चंदाना, यहां से एक फैक्ट बनेगा, चंदाना द डॉटर ऑफ दधिवाहन बिकेम महावीरास फर्स्ट मेंडिकेंट। फर्स्ट महावीरास फर्स्ट मेंडिकेंट, इसी को हम कहते हैं वुमन, ऐसा बोल सकते हो आप, या ऐसा बोल सकते हो कि शिष्या जो बोलते हैं ना, शिष्या भिक्षुणी, शिष्य को क्या बोलते थे, भिक्षुण, और जो महिला शिष्य होती थी उसे कहते थे भिक्षुणी, इसी को हम भिक्षुणी कहते हैं। तो फर्स्ट मेंडिकेंट ऑफ महावीरा दैट इज फीमेल डिसाइपल कौन बनी, चंदना। एंड चंदना वॉज द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ चंपा दधिवाहन। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद आते हैं, नाउ आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हिस्ट्री में हमेशा पूछा जाता है, कंटेम्पररीज ऑफ फलाना एंड सो फलाना। तो जब महावीरा जिंदा थे, कंटेम्पररी मीन्स व्हेन महावीरा वाज अलाइव दे वर आल्सो अलाइव एट दैट टाइम। तो कंटेम्पररी मतलब समकालीन कहते हैं हिंदी में, ये भी यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एंड दे वर कंटेम्पररीज ऑल्सो एंड फॉलोअर ऑफ जैनिज्म ऑल्सो। तो ऐसे दो क्वेश्चन बन सकता है आपको, जो भी कंटेम्पररीज में बताने वाला हूँ, दे वर ऑल्सो द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म एंड अपार्ट फ्रॉम दोज वी विल कम टू नो अबाउट अदर किंग्स ऑल्सो हु लेटर बिकेम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, आप एक तरफ से शुरू करता हूँ, ठीक है। द रूलर्स ऑफ मगध, सबसे पहले, अब यहाँ हम क्या देखने वाले, फॉलोअर्स, और पहले क्या है, एंड दे वर कंटेम्पररीज ऑल्सो, दे वेर कंटेम्पररीज। ये तो यहां पर सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी, सो मगध वॉज रूल्ड बाय हर्यक डायनेस्टी दैट टाइम, एंड द रूलर्स बिलोंगिंग टू दिस डायनेस्टी, द फर्स्ट वन बिंबिसार, देन द नेक्स्ट रूलर वॉज अजातशत्रु, एंड देन द नेक्स्ट रूलर वॉज उदयन। ये आपको याद रखना है। सो दीज थ्री रूलर्स, हालांकि आपको याद भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम इसको आगे पढ़ेंगे, एकदम लाइन से पढ़ेंगे। सो दीज बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, हर्यक डायनेस्टी, एंड दे वर रूलिंग ओवर मगध, द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल महाजनपद्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दे वर कंटेम्पररीज ऑल्सो एंड लेटर इन देयर लाइफ दे बिकेम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म ऑल्सो। ठीक है, ये याद रखना, बिंबिसार, अजातशत्रु, the rulers of Magad belonging to Haryak dynasty, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड देन उदयन। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो और भी रूलर हमको मिलेंगे। रूलर ऑफ अवंती, चंड प्रद्योत, एंड ही वॉज द रूलर ऑफ अवंती। इसके बाद नेक्स्ट नेम मिलेगा दधिवाहन, तो आप जान ही गए, दधिवाहन डिसाइपल था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में होगा जब भी मिलेगा। ठीक है, चेतक, अच्छा वो जो चेतक था ना, चेतक ने अपनी जो बहन बहन, चेतक की बहन तो थी, त्रिशाला कौन थी, लिच्छवी किंग चेतक की बहन तो थी। तो जो माँ थी, महावीरा की जो माँ त्रिशाला, उसका भाई कौन, चेतक, वो भी था। ठीक है, वो भी था, एंड ब्रदर ऑफ त्रिशाला, ये तो जान गया। तो फिर भी लिख देता हूं नाम, दधिवाहन एंड चेतक, ऐसे इजी रहेगा आपको, दधिवाहन एंड चेतक। दधिवाहन जानते हो कहां का रूलर था, कहां का था दधिवाहन, ये दे वेर कंटेम्पररीज एंड दे वेर फॉलोअर ऑफ जैनिज्म ऑल्सो। दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अमंग्स्ट आर द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म और महावीरा, सेम हु अमंग्स्ट आर कंटेम्पररीज ऑफ महावीरा, जब महावीरा थे तो ये लोग भी थे, अदर अलग अलग जगह पे ये लोग भी दे वर ऑल्सो अलाइव। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। तो सो हु ऑल आर, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंड प्रद्योत द रूलर ऑफ अवंती,
then Dadivahan the ruler of Champa, and then Chetak the ruler of लिच्छवी। ठीक है, ये हो गया आपके कंटेम्परेरीज। अपार्ट फ्रॉम दोज अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स जो आगे आए, बहुत आगे आके, मतलब महावीरा जब गुजर गए उसके बाद आगे चल के रूलर्स हुए और वो भी उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, द फर्स्ट अदर फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, अदर फॉलोअर्स, ठीक है, अदर का मतलब अदर फैक्ट नहीं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य, लेटर यू विल स्टडी अराउंड इन 322 BC वी हैव मगध। यहाँ हम कब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम 540 BC के आसपास की बात कर रहे हैं ना। अब और 200-250 साल आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 322 BC में। और 322 BC में दिस द चंद्रगुप्त, अब ये जो मगध है, नाउ मगध इज अंडर द रूल ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। एंड हु इज द नोन एज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब पढ़ोगे आप आगे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी पावरफुल रूलर। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड संप्रति, एक और मौर्यन एम्पायर के ना, बिंदुसार एंड संप्रति, they were amongst Mauryan rulers, Mauryan dynasty, rulers of Mauryan dynasty, Chandragupta Maurya, Bindusar it belongs to Haryak dynasty, Bindusar belongs to Mauryan empire, ये याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य, they are not contemporaries, no, we are talking about 200 and 250 years ahead, after the death of Mahavira, 200, almost 200 years after the death, or 150 or 200 or so. यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड संप्रति, एंड देन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और फैक्ट। अब यहीं पर मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको रिगार्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना, before going into this I must tell you there is a word called sanlekhana. Another name for sanlekhana is santhara. According to Jain rituals, sanlekhana or santhara is actually the practice of fast till death, फास्ट टिल डेथ। तो क्या होता है कि फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, मैनी मंक्स एंड वेरी क्रूड फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म लेटर इन देयर फाइनल स्टेजेस ऑफ लाइफ, दे परफॉर्म संलेखना और संथारा। व्हाट दे डू, दे लीव ऑल काइंड्स ऑफ ईटेबल्स, ग्रेन्स, एवरीथिंग, इवन वाटर, एंड दे डू सो टिल they are dead. So it's a process or it's a ritual in Jainism through which monks or the follower of Jainism, they keep fast, and they keep fast without eating anything, without a single drop of water, and they perform this ritual till death. So it is sanlekhana or santhara, it is fast till death, शॉर्ट फॉर्म में एकदम बोल दूं। सो चंद्रगुप्त मौर्य, इन हिज लेटर पार्ट ऑफ लाइफ ही माइग्रेटेड फ्रॉम मगध टू श्रावणबेलगोला, वेयर इट इज श्रावणबेलगोला, इट्स इन मैसूर, एंड मैसूर इज इन विच स्टेट, कर्नाटका। So here in the spot, Shravanbelgola, Mysore, Karnataka, Chandragupta Maurya, the founder of Mauryan Empire, he went there, he migrated, he settled down here, in Shravanbelgola, Mysore, and later on he performed Sanlekhana or Santhara, and in this way performing Sanlekhana and Santhara, he died. ये याद रखना है आपको। And it is at this spot only, Chamun Roy later in 10th century AD, after
around 700, 300, around after 1300 years, मतलब 10th century AD. So it is on this spot in 10th century AD in medieval India. We are talking about medieval India. मतलब देखो पहले 322 BC से ऐसा 300 ऐसे करके 0 पहुंचेगा, फिर उसके बाद 100 years फर्स्ट सेंचुरी AD, फिर 100 years, इस तरह से इन medieval India. यही मैं बता देता हूं आपको, चामुंड राय इन 10th century AD, चामुंड राय बहुत इंपॉर्टेंट है, चामुंड राय. Who was Chamund Rai? He was actually the minister of a king known as Mall, ठीक है, of Gang dynasty, and Mall belonged to Gang dynasty, गंग वंश का एक राजा था मल्ल. So Chamund Rai, who was Chamund Rai? Chamund Rai was the minister of Mall, the ruler of Gang dynasty. He built here in this spot only, in Shravan Belgola, Mysore, he built a 17.5 meter stone statue of whom? Gomateshwar. Chamund Rai built a stone statue of गोमतेश्वर आइडल मूर्ति, स्टोन मूर्ति बनाई गोमतेश्वर की. ऊंचाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी 17.5 मीटर. द टॉलेस्ट महावीरा स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, है ना, गोमतेश्वर. द स्टोन स्टैच्यू इन श्रावण बेलगोला, मैसूर. इट इज द tallest statue related to Jainism, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है. अब who is गोमतेश्वर? He is the son of फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, गोमतेश्वर. तो ये याद रखना है आप लोगों को. गोमतेश्वर आइडल कहाँ है? श्रावण बेलगोला, मैसूर. Who built it? चामुंड राय. चामुंड राय was the minister of King Mal of Gang dynasty, ठीक है, आपको ये याद रखना है. और एक और चीज़, जैनिज्म रिचुअल, फिलॉसफी और वे ऑफ लिविंग, लिटरेचर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है, इट इज़ हियर इन दिस स्पॉट ओनली इन श्रावण बेलगोला, मैसूर. इन एवरी 12 ईयर्स क्या होता है? महामस्ताभिषेक. मस्ता किसको बोलते हैं ना? अभिषेक. So it is, and over this idol only, Gomteshwar idol only in Shravan Belgola, Mysore, in every 12 years, this ritual of Mahamastabhishek is performed. Over the statue of Gomteshwar. दही, दूध, ये सबसे खूब अभिषेक करते हैं, ठीक है, ये किया जाता है. तो ये याद रखना, महामस्ताभिषेक. दिस रिचुअल इज रिलेटेड टू गोमतेश्वर इन श्रावण बेलगोला, मैसूर, ठीक है. इसके बाद दो और इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि रूल बस इतने ही. जैनिज्म के उस समय जो फॉलोअर्स बहुत मिले ना, एंड आपको लगेगा कि इतना पैट्रोनेज बुद्धिज्म को नहीं मिला जितना जैनिज्म को मिला. हाँ मिला, लेकिन द रिचुअल्स, the code of conduct for Jainism was so tough that in few course of time it began to shrunk. And you remember Buddha's middle path theory, the rituals, the code of conduct were not so rigid as that of Jainism. This became one of the reason that Jainism failed to propagate as vast, as wider as Buddhism propagated. Almost half of the world is Buddhist. चाइना पूरा लगभग बुद्धिस्ट है. चाइना, आपके इंडोनेशिया, इधर आपका जापान, यहाँ तक प्रोपगेट हो गया बुद्धिज्म, यहाँ से उठकर वहाँ तक चला गया. और ये साले दुश्मनी निभाते. चाइना की जो मेजॉरिटी है वो बुद्धिस्ट है. और बुद्ध कहाँ का है? ही वॉज ओनली बॉर्न इन नेपाल, और उस समय भी नेपाल इंडिया का भाग कहलाता था. उस समय की बात है ना.
तो ही वॉज बॉर्न ओनली इन नेपाल, लेकिन फिर वो मंक बना, वो मरा, वो सब कहाँ हुआ? वो इंडिया में हुआ। रिमेंबर पावापुरी, कहाँ है पावापुरी? कहाँ मरा वो? सॉरी, पावापुरी नहीं, कुशीनगर इज इन यूपी। ठीक है, चलिए। और उनको नॉलेज कहाँ मिला था? गया, बिहार। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम these are followers also, follower of Jainism, follower of Mahavira, and they were contemporaries also. So contemporaries, the rulers who were contemporaries, यहाँ से शुरू करते हैं। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, they belong to Haryak dynasty, rulers of Magध। उसके बाद आ जाते हैं चंड प्रद्योत, ruler of Avanti, then we have Chetak, and then we have Dadhivahan also, है ना। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वर अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स इन लेटर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दे ऑल्सो बिकेम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। मौर्यन, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन संप्रति। एंड वन इंपॉर्टेंट फैक्ट चंद्रगुप्त के बारे में देख लिया, चंद्रगुप्त इन लेटर फेज ऑफ लाइफ ही performed संलेखना, and so performing this ritual he died। ये भी याद रखा, श्रावण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक, and it is on this spot only in later in the medieval phase of history, Chamund Rai, one of the ministers of King Mal of Ganga dynasty, he made a large around 17.5 meters of stone statue of Gomteshwar, the son of Rishabdev, and it is in this over this idol only in Shravan Belgola Mysore only in every 12 years महामस्ताभिषेक इज परफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम अदर फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म देयर आर 2 इंपॉर्टेंट नेम्स, खारवेल एंड अमोघवर्ष। खारवेल, देयर आर 2 अदर फॉलोअर्स, खारवेल एंड अमोघवर्ष। Kharvel, he was the ruler of Kalinga. Kalinga, you know, Kalinga, when I say Kalinga, it means the present Odisha. The ruler of Kalinga, and Amoghvarsh, he belonged to Rashtrakoot dynasty. South में था ना, he belonged to Rashtrakoot dynasty. सब पढ़ेंगे आप ये सब, Rashtrakoot dynasty. Kharvel is also the follower of Buddhism. एंड इंपॉर्टेंट क्या है, ही कंस्ट्रक्टेड केव्स इन उदयगिरी माउंटेन फॉर जैन मंक्स। एक कभी आपसे पूछेगा, उदयगिरी पहाड़ियों में जैन मंक्स के लिए गुफाएं बनी हुई है, वो किसने बनवाई हैं? खारवेल। सो ही कंस्ट्रक्टेड केव्स फॉर जैन मंक्स इन उदयगिरी माउंटेन्स। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट Amoghvarsh, he was the ruler in south, he belonged to Rashtrakoot dynasty, he was also the follower of Jainism, and he has written a granth, a Jain granth, it's related to Jainism only, and it's Ratna Malika। बहुत important है, Amoghvarsh wrote Ratna Malika। It's a granth written by Amoghvarsh। Amoghvarsh is the follower of Jainism, and he wrote in connection with Jainism only, he wrote a granth, है ना। No, it's not important। सत्यन, at what age it's not important, no। जहां पर क्वेश्चन बन सकता है केवल अपन वही फोकस करते हैं। डेटा बचा हुआ है ना, ये काम कर रहा है मेरे ख्याल से 240 पिक्सल में हो गया। हाँ, ठीक है, ओके। अमोघवर्ष, Rashtrakoot dynasty, and he wrote a important granth in relation to Mahavira. It's called Ratna Malika। याद रखना है आपको, Ratna Malika। Who wrote Ratna Malika? It was written by Amoghvarsh, the ruler belonging to Rashtrakoot dynasty, and Rashtrakoot, they ruled in south part of India। ऐसा याद रखना है आपको, ठीक है। देन एक और आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं, मिटा देता हूं मैं इसे।
आज और कल में हम जैनिज्म को, कल हमारा पूरा लिटरेचर होगा, जैन फिलॉसफी होगा, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी नय, ये सब कल देखेंगे। लिटरेचर भी उसका खत्म करेंगे एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमारा जैनिज्म कल खत्म हो जाएगा। देन वराकर नदी इन, देखो स्पॉट देखो, वराकर रिवर, ठीक, वराकर रिवर, और यहाँ पे जो किस पहाड़ी में था ये, विपुलांचल माउंटेन, वराकर रिवर इन विपुलांचल माउंटेन एंड वेयर राजगृह बिहार, पता है, यही बाद में पाटलिपुत्र बनता है ना, राजगृह। अच्छा, कभी कभी राजगृह को राजगीर भी लिख देते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, राजगृह एंड राजगीर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। यहां पर महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon, याद रखिएगा, महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon on the banks of Varakar river in Vipulanchal mountain located in राजगृह बिहार। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या याद रखना है कि he delivered his sermon in प्राकृत language. In which language? प्राकृत। It was also the common mass language, मतलब उस समय देखो, संस्कृत was the language popular amongst higher varna, only few people could speak Sanskrit, ठीक है, and other varna shudras they were not allowed to learn Sanskrit, so Prakrit and Pali they were the language of common masses. So one other factor which became the cause for both these religions, Buddhism and Jainism, to propagate was that they very intelligently they selected the common mass language to propagate, to preach, to deliver their sermons, so that even common masses they can also understand and they can become the follower of their respective religion. एक और रीजन हो गया, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, प्राकृत एंड बुद्धा इन पाली लैंग्वेज एंड महावीरा इन प्राकृत लैंग्वेज, याद रखना है, दोनों लैंग्वेज कॉमन मास की लैंग्वेज थी। अब उसके बाद देखिए, इन ड्यूरिंग हिज लाइफ ओनली महावीरा स्टैब्लिश्ड अ संघ ऑफ हिज 11 फॉलोअर्स। जब बहुत इनिशियल, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, व्हेन उन्होंने अपने he selected important 11 followers and he made a sangh, and that sangh was known as गणधर। हिंदी में देखो ज्यादा क्लियर सुनाई देगा, गणधर। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अपन इसको, गणधर। ये तो गणधर आपसे पूछ दे तो क्या है, तो गणधर is actually the sangh created by Mahavira having his 11 followers, गणधर, ठीक है। और in 468 BC, now finally in 468 BC, at the age of 72, दोनों याद रखना है, at the age of 72 in 468 BC he passed away, he achieved nirvana in Pavapuri in Rajgiri, where he died in Pavapuri, and Pavapuri is also in Rajgiri only, राजगृह। ईयर याद रखना है, इन 468 BC। अब 72 याद रहेगा तो आप 540 से माइनस करके पीछे आ सकते हो, पहुंच जाओगे यहाँ 68। एट द एज ऑफ 72 ही डाइड वेयर इन अ लोकल प्लेस कॉल्ड पावापुरी, बी लोकेटेड इन राजगृह। और ये भी पूछ सकता है, ही डाइड मीन्स महावीरा अटेन्ड निर्वाणा, ये आप याद रखना, महावीर अटेन्ड निर्वाणा, दैट इज ही पास्ड अवे, ही डाइड एट द एज ऑफ 72 in 468 BC एंड वेयर पावापुरी राजगृह। ये आपको याद रहना चाहिए।
और आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, एट द सेम टाइम और माइट बी हाफ एन आवर प्रायर टू द टाइम वेयर वी स्टार्टेड। आज भी वही थोड़ा सा लेट हो गया हमें, सॉरी। कोशिश करूँगा कि कल 5:30 से स्टार्ट करूँ तो हम लोग 6, 7, 8 बजे तक पूरी जैनिज़्म ख़त्म कर लें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट।